Hello students, welcome in my biology classes. Now in this video we are going to discuss about the regulation of the cell cycle and different checkpoints. So in this sequence of the cell cycle and cell division, in the previous lecture we have discussed about the different phases of the cell cycle, that is G1, S, G2 phases, and we have also discussed about the different type of the changes the value of DNA content, that is the C value, and the number of chromosomes, that is changes during the G1, S, G2 and M phases. So in this part we are going to discuss about the checkpoints. So what is the meaning of the checkpoints and why the checkpoints are there? So there are various events in the cell cycle, that is DNA replication and the different karyokinesis and cytokinesis. There are different phases. So these are the two important phases which occurs during the cell cycle. And the checkpoints are the surveillance mechanisms that monitors the order, integrity and fidelity of the cell division process. That means it ensures that one step begins before the next step, one step completed before the next step begins. So this is a type of the surveillance mechanism. So यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि पूरे सेल साइकिल में अगर हम बात करें तो पूरे सेल साइकिल में आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नजर आएंगी. So there are different phases. तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे G1 की, S की, G2 की. तो यहाँ पे चार फेजेस हैं. पहला तो आपका हो जाएगा G1 फेज, दूसरा S फेज, G2 फेज और यहाँ पे बात करेंगे M फेज की. So these are the four important phases, but out of these four, two are very important. दो बहुत important कौन से phases हैं? That is S phase and M phase. क्यों? क्योंकि S phase में क्या हो रहा है? DNA का replication हो रहा है. M phase में क्या हो रहा है? जो S phase में क्या हो रहा है? DNA का replication हो रहा है और M phase में सेल का division हो रहा है. That is karyokinesis हो रही है और cytokinesis हो रही है. तो ये दो इंपॉर्टेंट फेजेस है और इन दोनों इंपॉर्टेंट फेज के पहले एक प्रिपरेशन फेज है. दैट इज एस के पहले जो प्रिपरेशन फेज है दैट इज कौन सा है? G1 फेज. और यहाँ पे एम के जो पहले का इंपॉर्टेंट फेज है दैट इज प्रिपरेशन फेज है, वो आपका है G2 फेज. तो यहाँ पर प्रिपरेशन के एंड पर आकर के चेक पॉइंट्स लगेंगे. सो फर्स्ट चेक पॉइंट, देयर आर 3 चेक पॉइंट्स. तो पहला जो चेक पॉइंट है वो आपको कहाँ लगेगा? इस G1 के एंड में, that is before the start of S phase. So this is called G1 checkpoint. So this is the first checkpoint, that is called G1 checkpoint. इसी को हम restriction checkpoint कहते हैं in a higher organism. This is called restriction checkpoints. Restriction checkpoints. और जो तीसरा आपका हो जाएगा जिसको हम कहते हैं स्टार्ट पॉइंट. लोअर अगर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे स्टार्ट पॉइंट. तो पहला जो चेक पॉइंट हो गया वो G1 के एंड में हो रहा है, क्योंकि G1 के बाद क्या है? अगला फेज जो आपका इंपॉर्टेंट फेज है दैट इज S फेज, जहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन होना है. इसी तरह से जब आप M फेज की बात करोगे, सेकेंड इंपॉर्टेंट फेज की बात करोगे, तो यहाँ पे जाने से पहले सारी प्रिपरेशन कहाँ हो जानी है? G2 में हो जानी है. तो G2 में जब होनी है तो यहाँ पे जो दूसरा जो आपका चेक पॉइंट होगा वो G2 के एंड में होगा. यानी M फेज में एंटर करने से पहले G2 के एंड में आकर के पहले सेल चेक करेगा कि सारी तैयारियां अभी हो चुकी हैं या नहीं हुई हैं. तो दिस इज कॉल्ड G2 चेक पॉइंट. सो दिस इज सेकेंड वन इज G2 चेक पॉइंट. ओके, so this is the second checkpoint, and the third checkpoint, it is at the middle of the M phase. So middle of the M phase का मतलब the first is prophase, then metaphase. So this is the first, that is the prophase, then metaphase, then anaphase, then telophase, and then cytokinesis. तो prophase metaphase के end में, metaphase जो ये आपका metaphase है ना, तो metaphase के end में यानी कि जब कोई भी सेल एंटर कर रही है एनाफेज में, तो एनाफेज में एंटर करने से पहले या फिर मेटाफेज के एंड में एक चेक पॉइंट यहाँ भी मिलता है जिसको हम कहते हैं एंड चेक पॉइंट. सो यहाँ पे तीसरा जो चेक पॉइंट मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एंड चेक पॉइंट. इसको हम और नाम से क्या जानते हैं? स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट. यानी यहाँ पर आपको ये चेक करना होगा, यानी कि सर यहाँ पे जो चेक करेगा कि
कि जो सारे आपके क्रोमोसोम हैं वो स्पिंडल फाइबर से प्रॉपरली अटैच हो चुके हैं या फिर नहीं हुए हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल चेक पॉइंट, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर हमको 3 चेक पॉइंट्स मिलते हैं, दैट इज G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट एंड M चेक पॉइंट। सो यहां पे देखिए क्या चेक हो रहा है, चेक फॉर व्हाट, चेक फॉर व्हाट, क्या चीजें चेक हो रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक फॉर द सेल साइकिल ग्रोथ या सेल साइज ग्रोथ। सो सेल साइज, चेक फॉर द सेल साइज, यानी कि जो सेल की साइज है वो प्रॉपर ग्रो कर चुकी है या नहीं कर चुकी है। दूसरा चेक फॉर द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, nutrient availability, because for the process of the replication the cell need various type of the raw materials, various type of the nutrients, various type of the protein, enzymes, ATPs. So there are different types of the nutrients required for the process of the DNA replication. So check for the nutrient availability. Now the third one is growth factor, and the second, the last one is DNA integrity, DNA integrity. So यहाँ पर जो DNA का चेक होना बहुत जरूरी है कि जो भी DNA या जो भी सेल अपने DNA के साथ एंटर कर रहा है वो DNA कहीं प्रॉब्लम में तो नहीं है, या उस DNA में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। Otherwise, once it enters into the S phase, it starts replication, and now the one DNA with error, with difficulty, with problem, it replicates into 2, and now the cell goes into the another phases. तो यहाँ पर जो DNA है, that is important part of the cell. यहाँ पर उसको replicate होने से पहले ये चेक किया जाता है कि यहाँ पे कोई DNA के अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर जीएनए में ही क्या हो जाता है, जीवन में क्या हो जाता है, सेल पॉज कर लिया जाता है और सेल फिर चला जाता है G0 फेज में। तो आप लोगों ने पहले भी ये पढ़ा होगा कि जो सेल होता है वो G0 फेज में चला जाता है, G0 फेज, ताकि कोई भी अगर सेल अगर मैच्योर हो रहा है तो भी G0 फेज में चला जाएगा। अगर कोई डीएनए में डिफेक्ट है, कोई एरर है तो भी क्या हो जाएगा, सेल जो है वो रिपेयर करने के लिए G0 फेज में चला जाता है। सो यहाँ पे हमने बात किया चेक पॉइंट्स की कि देर आर 3 different check points in the different phases. And what check for in the G1 phase, it check for the cell size, it should be proper, nutrient availability should be proper, growth factors there, and DNA integrity, यानी कि DNA is a very important. In G2 checkpoint, what check for? Check for the DNA replication. So it check for what? Check for what? So check for what? पहला क्या हो जाएगा कि यहाँ पे भी DNA से ही रिलेटेड सारी चीजें चेक होती हैं। DNA replication, completed or not? Completed और नॉट, यानी कि जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे एस फेज में वो कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका है। इट इज प्रॉपर और नॉट, डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपरली डन और नॉट, प्रॉपरली डन और नॉट, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे भी डीएनए की इंटीग्रिटी ही चेक हो रही है कि डीएनए का रेप्लिकेशन अभी चल तो नहीं रहा है, डीएनए कंप्लीटली रेप्लिकेट हो चुका है या नहीं हो चुका है। इसके साथ साथ जो डीएनए जो रेप्लिकेट हो रहा है ऐसा तो नहीं कि कोई गलत या रॉन्ग पेज पे आकर के जुड़ गया है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो होंगी वो चेक होंगी। कोई फॉल्ट अगर हो गई है रेप्लिकेशन के टाइम पे तो तुरंत वो क्या हो जाएगी, उसको पहले सही किया जाएगा। तो यहाँ पर आकर के जो G2 का एंड वाला पार्ट है यहाँ पे भी वो सारी तैयारी करता है। इसके साथ साथ check for all the preparation, check for all preparation
फॉर एम फेज। एम फेज, तो इस एम फेज के लिए जो भी प्रोटीन की जरूरत है, जो भी एंजाइम की जरूरत है, एटीपी की जरूरत है, जो भी रॉ मटेरियल्स की जरूरत है, वो सारे जो प्रिपरेशन है, वो सारा प्रिपरेशन कहाँ चेक होगा? आपके G2 के एंड में जाके चेक होगा। बिफोर गोइंग इन द एम फेज, इट फर्स्ट इंश्योर whatever the things which is required for the M phase, it is completely prepared in the G2 phase or not. So all the things they have to check. They have to check also for the DNA integrity, that is more important. So if the DNA is not properly replicated, if the DNA has any problem in the replication part, then it will pause in the G2 phase. Okay. Now that is M checkpoints. So M checkpoint, that is spindle assembly checkpoint. So what it check for? So it check for what? Check for what? So check for the complete या proper attachment of the chromosome at the spindle fiber. So proper attachment of chromosome to the spindle fiber. So these are the points, that is checkpoints, and these checkpoints is important for the preparation in that particular phase. So in the G1 phase, it is important preparation phase, because the next step is very important, that is the important step of the DNA replication. So all the preparation for the DNA replication, it is done in the G1 phase. So the G1 phase is very important for the checkpoint, that is कि सारी जो तैयारियां हैं जो S phase के लिए चाहिए, वो सारी तैयारी कहाँ हो जाती है? G1 phase में हो जाती है। तो यहाँ पर तैयारियों को चेक करना जरूरी होता है, अदरवाइज क्या होगा कि अगर तैयारियों में कोई गड़बड़ हो गई या डीएनए में कोई प्रॉब्लम है और सारी तैयारी हो चुकी है बट डीएनए में प्रॉब्लम है, तो वो सारी प्रॉब्लम कहाँ हो जाएगी? इस एस फेज में आ जाएगी। और एस फेज में अगर एक बार जब डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा तो जो उससे 2 सेल बनेंगे, उन दोनों सेल में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम जो है फाइनली आगे बढ़ जाएगी और प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ये सारे चेक पॉइंट्स फेल हो जाते हैं, सो व्हाट हैपन? इफ checkpoints fail, इसके बावजूद भी अगर चेक पॉइंट्स फेल हो जाते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है, सबसे पहला म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। दूसरी क्या हो सकती है? यहां पर आपका कैंसर डेवलपमेंट हो सकता है, कैंसर डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। जेनेटिक प्रॉब्लम, जेनेटिक डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है, जेनेटिक डिफेक्ट। सो इट क्रिएट अ जेनेटिक डिफेक्ट, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। सो अगर ये चेक पॉइंट फेल हो गए तो क्या क्या प्रॉब्लम आगे हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये सारे जो चेक पॉइंट्स हैं वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो सेल होती है वो एक से दूसरे फेज पे कैसे जाती है? तो यहाँ पे 2 तरह की प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। तो एक जो प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं CDK, दिस इज द एंजाइम CDK, दैट इज अ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये एक एंजाइम है जो बेसिकली इनएक्टिव फेज में होता है, इनएक्टिव, ठीक है। दूसरा एक होता है साइक्लिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, साइक्लिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये जब दोनों कंबाइन होते हैं, व्हेन दीज टू कंबाइंस, तो यहां पर ये जो टोटल जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बिकम्स एक्टिवेटेड, कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। And when the CDK and cyclin complex becomes activated, the cell cycle progression takes place. And these complex now responsible for the cell cycle progression. So this is responsible for cell cycle progression. Cell cycle progression.
तो यहाँ पे हम देखते हैं, सपोज यहाँ पे हम इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो सपोज यहाँ पे ये क्या है, दिस इज द CDK, दिस इज द CDK, सो दिस इज द CDK एंड हियर देयर इज अ प्रोटीन। ये क्या है, यहाँ पे प्रोटीन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, साइक्लिन। सो दिस इज द साइक्लिन प्रोटीन। सो दिस इज इनएक्टिव एंजाइम, this is inactive enzyme and this is the protein cyclin protein complex। ठीक है, तो जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, when it this two combines, तो यहाँ पे जब इसको कंबाइन करेंगे, so this starts combine with each other। ठीक है, so this is the CDK and this is the cyclin। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स बिकम्स एक्टिवेटेड। अब ये एक्टिव हो जाएगा और जब ये एक्टिव हो जाता है तब ये जो सेल होती है वो नेक्स्ट जो फेज होता है उसमें एंटर कर जाता है। ओके, सो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे एक चीज बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो ये समझने वाली है कि there are different type of the cyclin and different type of the CDK। तो यहाँ पे 3 तरह के CDK होते हैं। अगर हम CDK की बात करें तो CDK4, CDK2 and CDK1, 3 different CDK। और साइक्लिन 4 तरह का होता है, that is साइक्लिन, साइक्लिन D, साइक्लिन E, cyclin A and the last one is cyclin B। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फेजेस के लिए कौन कौन सा साइक्लिन और CDK का कॉम्प्लेक्स बनता है और ये आगे फिर कैसे कैसे प्रोग्रेस करता है। सो लेट्स सी। तो देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे फेजेस हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं G1 फेज की, सो देयर आर डिफरेंट फेजेस and this is the CDK and here is the cyclin। so अगर हम बात करेंगे G1 फेज की या फिर हम बात करेंगे G1 और M फेज, G1 और S फेज के ट्रांजिशन, G1 S फेज ट्रांजिशन, इसके बाद बात करेंगे S फेज की और फिर आपके G2 और G2 M फेज के ट्रांजिशन। ठीक है, तो यहां पर अगर G1 फेज है तो CDK कौन सा होगा, 4 और साइक्लिन कौन सा होगा, D। अगर G1 S फेज का ट्रांजिशन है देन CDK 2 और साइक्लिन कौन सा होगा, दैट इज E। अगर S फेज है तो देन अगेन 2 और यहां पर कौन सा होगा साइक्लिन, दैट इज A। और अगर लास्ट है दैट इज G2 एंड G2 एंड फेज है तो यहाँ पे साइक्लिन 1 काम करेगा और यहाँ पर इसके लिए आपका CDK 1 काम करेगा और साइक्लिन B काम करता है। तो अलग अलग फेजेस के लिए अलग अलग CDK और अलग अलग साइक्लिन्स होते हैं और उस फेज में आने के पर ये अलग अलग कंबाइन होते हैं और सेल जो होगी वो नेक्स्ट फेज में जाकर के प्रोग्रेस करती है। सो यहाँ पर आपने ये देखा कि ये अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, सपोज यहाँ पे फिर से हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो अब हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं और फिर इसको समझते हैं। सो ये हमारा G1 हो गया, ये हमारा दिस इज G1, यहाँ पे हो गया S, यहाँ पे हो गया G2 और यहाँ पे हो गया M। देखिए अब होता क्या है, अब ये अलग अलग फेजेस के लिए हमने समझ लिया, यहाँ पे अलग अलग फेजेस है, इसके लिए अलग अलग CDK, अलग अलग साइक्लिन। इनका होना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जब दोनों कंबाइन होंगे तो एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनेगा और जब ये एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनता है तब ये जाकर के आगे अगले फेज में प्रोग्रेस करते हैं। तो सेल साइकिल सेल जो होती है वो अगले अगले फेजेस पे तभी जाती है जब इन दोनों का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर इस चेक पॉइंट के पहले सपोज कीजिए यहाँ पर पता चला कि कोई भी जो डीएनए है वो उसके कोई भी जो सेल है उसके डीएनए में कोई एरर है। ठीक है, अब सपोज कीजिए यहाँ पे कोई डीएनए है, अब उसके डीएनए में क्या है, डिफेक्ट है, यहाँ पे डीएनए डैमेज है या
कोई भी डिफेक्ट है, ठीक है। तो अगर डीएनए डैमेज है तो इस डीएनए के साथ कभी भी कोई सेल इस चेक पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा। यानी अब पहले क्या होगा, इस सेल की जो डीएनए है उसको रिपेयर करने के लिए जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स काम करता है, इसको कहते हैं P53। P53 को ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन, यानी एक ऐसा प्रोटीन जो कि ट्यूमर फॉर्मेशन को रोक रहा है, ट्यूमर फॉर्मेशन को सप्रेस कर रहा है। तो यहां पर ट्यूमर फॉर्मेशन को सप्रेस करने के लिए P53 होता है। अब ये काम कैसे करता है, ये जो ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है वो क्या करेगा, ये करेगा CDK इनहिबिटर को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगर कोई डीएनए डैमेज के साथ है, ये CDK इनहिबिटर क्या करेगा, इस कॉम्प्लेक्स के साथ, दिस इज द साइक्लिन, दिस इज द CDK एंड दिस इज द साइक्लिन। तो ये जो एक्टिव कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, ये जब बनेगा तभी कोई साइकिल जो है वो सेल जो है वो अगले फेज में जाएगी, ठीक है। अब ये इनहिबिटर क्या करता है, सपोज यहाँ पे ये इनहिबिटर है, ये इनहिबिटर जो है वो जाकर के इसके साथ बाइंड कर जाएगा, जिसके साथ क्या करेगा, ये बाइंड कर जाएगा। दिस इज द इनहिबिटर, दिस इज द इनहिबिटर। अब जब ये इनहिबिटर बाइंड करेगा तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। This complex becomes, so complex becomes inactivated। अब जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव होगा, नाउ सेल पॉज इन G1 phase और goes in G0 state for the repair, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि जैसे ही किसी डीएनए के अंदर डैमेज दिखा, तुरंत क्या होगा, P53 एक्टिव हो जाएगा। P53 इसको ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। दिस प्रोटीन प्रोड्यूसेस द CDK इनहिबिटर, so this will bind with this complex and this complex becomes inactivated and now the cell goes in the G1 phase or goes in the G0 phase for the repair process, okay। suppose कि अगर ये डीएनए डैमेज सही होने लायक नहीं है, if DNA damage not recovered, not able to recover, then what? Then this P53 now perform the last step। अब ये क्या करेगा, प्रोग्राम सेल डेथ, की तरफ चला जाएगा, यानी जिसको हम एपोप्टोसिस के नाम से जानते हैं, एपोप्टोसिस। यानी कोई भी सेल अगर डिफेक्ट के साथ है और अगर वो रिपेयर या नहीं हो पा रही है, तो वो जो सेल है अब वो आगे सेल साइकिल में नहीं जाएगा और अब उस सेल को खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्या, प्रोग्राम सेल डेथ। तो एक प्रोग्राम्ड वे में कोई भी सेल जो होगी वो अपनी डेथ कर लेती है, जिसको हम सेल डेथ कह सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। तो अगर यहाँ पर कोई भी डीएनए में डैमेज है तो वो या तो वो रिपेयर में चला जाएगा। रिपेयर में जाने के लिए क्या होगा, P53 प्रोटीन होगी जो कि CDK इनहिबिटर एंजाइम को सिक्रीट करती है या फॉर्म करती है। दिस CDK इनहिबिटर बाइंड्स विद द CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स, दैट इज एक्टिव कॉम्प्लेक्स, और जब ये इनहिबिटर बाइंड करेगा तो ये इनहिबिट हो जाएगा, यानी इनएक्टिवेट हो जाएगा। जब ये कॉम्प्लेक्स इनएक्टिवेट हो जाता है, यानी कि अब वो सेल अगले फेज में नहीं जाएगा, क्योंकि अगले फेज में जाने के लिए एक्टिव कॉम्प्लेक्स चाहिए CDK और साइक्लिन का। Now the cell will pause in the G1 phase or goes into the G0 state for the repair. And if the DNA is not able to repair, अगर ऐसी कंडीशन है कि वो रिपेयर हो ही नहीं सकती, then now the P53 just follow the next, that is the last program, that is the program cell death, that is apoptosis. Now the cell undergo in
डेथ फेज, अब ये सेल खत्म हो जाएगी, इसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि अगर कोई भी सेल अगर G0 स्टेट में है तो वहां भी काइनेज एंजाइम होता है। ये काइनेज एंजाइम क्या करेगा? सो इन द S फेज, लेट्स सी, सो इन द G0 फेज, सॉरी इन द G2 फेज, अगर हम यहाँ पे G2 फेज की बात करें, ये तो हमारा G1 फेज की बात हो गई। अगर हम यहाँ पे G2 फेज की बात करें तो G2 फेज में क्या होता है? यहाँ पे अगर कोई डिफेक्ट है, अगर सपोज डीएनए का एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, या फिर डीएनए का एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आ गई है, या कंप्लीट नहीं हुआ है, व्हाटएवर, तो यहाँ पर काइनेज एंजाइम होता है। काइनेज एंजाइम, ये जो काइनेज एंजाइम होता है, फिर ये क्या करेगा? इनहिबिटर सीक्रेट करेगा, इनहिबिटर सीक्रेट करेगा, और ये इनहिबिटर क्या करेगा? CDK साइक्लिन को इनएक्टिवेट कर देगा, बिकम्स इनएक्टिवेट, इनएक्टिवेट, और जब ये इनएक्टिवेट हो जाएगा तो फिर वो सेल साइकिल वहीं पर रुक जाती है। नाउ कम टू द थर्ड स्टेज, दैट इज द थर्ड स्टेज, थर्ड चेक पॉइंट, दैट इज द M फेज चेक पॉइंट, दैट इज माइटोटिक चेक पॉइंट। तो यहां पे जो माइटोटिक चेक पॉइंट है, माइटोटिक चेक पॉइंट, दिस माइटोटिक चेक पॉइंट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे क्या होता है? यहां पे स्पिंडल असेंबली चेक होती है। इट चेक फॉर द स्पिंडल असेंबली, असेंबली। अब स्पिंडल असेंबली चेक करने का क्या मतलब है? यहां पर जब कोई भी सेल मेटाफेज में जाता है तो आपने देखा होगा कि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो दो क्रोमैटिड्स में नजर आने लगते हैं, एंड अब यहां पर ये इक्वेटर पे सारे अरेंज हो जाते हैं, एंड दिस इज द काइनेटोकोर एंड दिस इज द स्पिंडल फाइबर। सपोज कि अगर यहां पर कोई एक स्पिंडल फाइबर प्रॉपरली अटैच नहीं हुई है, देन व्हाट विल हैपन? दीज स्पिंडल फाइबर व्हेन स्टार्ट्स moving, it becomes shorting, and then it pulls this complete set towards the one pole। तो यहां पे क्या होगा कि एक सेल जो बनेगा उसमें एक क्रोमोसोम ज्यादा होगा, और दूसरा जो सेल बनेगा उसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी का मतलब या तो 2n+1 हो जाएगा, या फिर 2n-1 की कंडीशन आ जाएगी। सो दिस इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट, एक तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस चीज को ना हो, ये चीज रोकने के लिए यहाँ पे क्या होता है? M फेज चेक पॉइंट्स होते हैं, यानी कि ये प्रॉपरली जो स्पिंडल फाइबर है वो आपके क्रोमोसोम से एट अ सेंट्रोमेरिक पोजीशन प्रॉपरली अटैच है या फिर नहीं है। ठीक है। अब यहां पर एक प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज कॉल्ड एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? एनाफेज के लिए प्रमोट करेगा, यानी कि कोई भी सेल मेटाफेज से एनाफेज में चली जाए, इसके लिए प्रमोट करने के लिए कौन सी प्रोटीन होती है? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये काम कैसे करता है? दिस एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस यूबिक्विटिन प्रोटीन, यूबिक्विटिन प्रोटीन। सो दिस इज यूबी से हम इसको डिनोट करते हैं, यूबिक्विटिन प्रोटीन। अब ये जो यूबिक्विटिन प्रोटीन है ये किससे जाके बाइंड करेगा? एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं, सो दिस इज टू प्रोटीन्स, one is Separex, and one is Securin, So ये जो यूबिक्विटिन है वो जाके कहां बाइंड करेगा? इस Securin से जाके बाइंड कर जाएगा। ठीक है। वैसे ये this Securin suppress the Separex protein। तो ये जो ओवरऑल जो होती है ये इनएक्टिव होती है, लेकिन जब ये इसके साथ बाइंड करता है, यहां पे हम इसको दिखा देते हैं कि जब ये इसके साथ बाइंड करता है, यानी कि ये और ये जब आपस में बाइंड करेंगे, सो बाइंड करेंगे तो देखिए क्या होगा?
कि यहां पर दिस इज द सेक्योरिन एंड दिस इज द सेपेरेक्स. सो दिस इज द सेपेरेक्स एंड दिस इज द सेक्योरिन एंड नाउ यूबिक्विटिन बाइंड्स. और जैसे ही ये यूबिक्विटिन बाइंड करता है ना, दिस यूबिक्विटिन जस्ट ब्रेक डाउन दिस सेक्योरिन. तो अब क्या होगा कि ये यूबिक्विटिन क्या करेगा, इस सेपेरेक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा. नाउ द सेपेरेक्स ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस एंड दिस सेक्योरिन को स्मॉलर पीसेस में तोड़ देगा एंड नाउ दिस सेपेरेक्स बिकम्स फ्री. सेपेरेक्स क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा. अब ये जैसे ही फ्री होगा, इट बिकम्स फ्री एंड एक्टिवेटेड. तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि सेक्योरिन ने सेपेरेक्स को क्या कर रखा था, इनएक्टिवेट करके रखा था. इसने इसको इनएक्टिवेट करके रखा था. नाउ अब ये सेपेरेक्स क्या करता है, अब ये जो सेपेरेक्स होता है ये कोहेसिन से जाके बाइंड करता है. इट बाइंड्स टू द कोहेसिन प्रोटीन, बाइंड्स टू द कोहेसिन. अब ये कोहेसिन क्या है, अब ये जो कोहेसिन प्रोटीन है, यहां पर ये जो आपका दो क्रोमैटिड है, इन दोनों क्रोमैटिड्स को जोड़ने वाला एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं कोहेसिन प्रोटीन. कोहेसिन प्रोटीन. सो दीज कोहेसिन प्रोटीन attaches the two chromatids at the centromeric position. अब जैसे ही ये कोहेसिन प्रोटीन से बाइंड करेगा दिस सेपेरेक्स, कोहेसिन प्रोटीन्स, कोहेसिन प्रोटीन ब्रेक्स. अब कोहेसिन प्रोटीन को ब्रेक कर देगा और जैसे ही कोहेसिन प्रोटीन ब्रेक होगी तो क्या होगा, दीज टू क्रोमैटिड्स गेट सेपरेट. अब ये दोनों क्रोमैटिड जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे एंड दे आर फाइनली अटैच्ड विद द स्पिंडल फाइबर एंड नाउ दे स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल. सो यहाँ पर प्रॉपर जो एक क्रोमोसोमल स्प्लिटिंग है, उस स्प्लिटिंग के लिए कौन सा एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स. दिस एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्चुअली इट्स प्रमोट द एनाफेज. कोई भी सेल जो कि मेटाफेज पोजीशन में है वो एनाफेज में तभी जाएगी जब ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होगा. अब ये काम कैसे कर रहा है, दिस एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स सीक्रेट यूबिक्विटिन, यूबिक्विटिन को फॉर्म करेगा. यूबिक्विटिन जो प्रोटीन होगी वो क्या करेगी, इस कॉम्प्लेक्स यानी सेक्योरिन और सेपेरेक्स से जाके बाइंड हो जाएगी. ये जो कॉम्प्लेक्स है ऑलरेडी वो इनएक्टिव स्टेट में है. जैसे ही यूबिक्विटिन बाइंड होगी ये सेक्योरिन को ब्रेक कर देगा. नाउ सेक्योरिन ब्रेक्स. So this is the securin breaks. और जैसे ही सेक्योरिन ब्रेक हो जाएगा, ये सेपेरेक्स को क्या करेगा, रिलीज कर देगा. सेपेरेक्स जैसे ही रिलीज होगा, ये पहले तो फ्री हो गया और एक्टिवेटेड कंडीशन में आ गया. नाउ दिस एक्टिवेटेड सेपेरेक्स बाइंड्स टू द कोहेसिन. एंड व्हाट इज कोहेसिन? कोहेसिन इज अ प्रोटीन दैट help in the attachment of two chromatid at their centromeric position. So this cohesin protein now attaches with the cohesin. This seperex protein now binds with the cohesin and now cohesin protein breaks. और जैसे ही cohesin protein break होगी, now this chromosome splitting takes place between two. In the middle से क्या होगा, ये टूट जाएगा और जैसे ही ये टूटेगा दो chromatids अलग हो जाएंगे और ये दोनों अपने अपने पोल की तरफ मूव कर जाएंगे. सो एनाफेज स्टार्ट हो जाएगा. देन एनाफेज जो आपका अर्ली था पहले स्टार्ट होगा, देन लेट होगा, देन फिर आपका टेलोफेज, देन साइटोकाइनेसिस. तो इस तरह से जो माइटोटिक डिवीजन है उसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे जो भी आपके डॉटर सेल हैं एज कंपेयर टू द पेरेंट्स. सो दिस इज वे हाउ टू चेक पॉइंट्स वर्क. और ये चेक पॉइंट्स का होना क्यों जरूरी है, ये चेक पॉइंट्स कैसे कैसे काम करते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने P53 की बात की है. ठीक है, P53 कैसे काम करेगा, ये इनहिबिटर प्रोड्यूस करेगा. इनहिबिटर जो है वो इस कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है और इसको इनएक्टिव कर देता है. और जब ये इनएक्टिव होगा तो सेल साइकिल रुक जाती है इन द जीवन फेज या फिर G0 में चली जाएगी फॉर द रिपेयर. अगर रिपेयर होने लायक है देन ओके, नहीं होने लायक है तो डीएनए डैमेज अगर नॉट एबल टू रिकवर देन ये प्रोग्राम सेल डेथ में चला जाएगा. फिर क्या होता है, G2 की तरफ आता है. G2 में भी सारी चीजें क्या क्या होती है मैंने आपको बताया.
यहाँ पे भी अगर प्रॉब्लम है, अगर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे भी सेल क्या करेगा, पॉज कर जाएगा। नाउ द काइनेज एंजाइम जो है इनहिबिटर प्रोड्यूस करता है, दिस इज कॉल्ड इनहिबिटर। और इनहिबिटर जो है वो साइक्लिन सीडीके साइक्लिन के जो कॉम्प्लेक्स है उसको क्या करेगा, इनएक्टिवेट करेगा। सो ओवरऑल दो चीजें हैं, दैट इज सीडीके जो कि एंजाइम है और दूसरा है साइक्लिन जो कि प्रोटीन है। तो सीडीके और साइक्लिन ये दोनों ही चीजें क्या होती हैं, ये इनएक्टिव हैं, ये इनएक्टिव है, और जब ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा और फिर क्या होगा, जो सेल है वो अगले साइकिल के लिए, अगले फेज के लिए प्रोग्रेस कर जाएगी। So this is the overall mechanism how the cell cycle checkpoint works. So in the next phase we will discuss some other topics. So अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। Thank you so much. Bye bye.